Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the deflection method, which was the application of D'Alembert formula. Today, we will talk about Euler-Pearson-Darboux theorem. So, before discussing about the Euler-Pearson-Darboux theorem, let me recall the notations which we have discussed in the last class. And the notations were: let x belongs to Rn and t is positive, r is positive, then we are defining capital U of xrt as average of surface integral of u by t over the sphere, that means the boundary of the ball bxr. Okay, so this is the average of u dot comma t. Dot means that can be x comma, that will be the u yt or u xt, whatever you call, it is up to you, over the sphere, which is the sphere, that is curl bxr. Okay, and capital G of xr, that is defined as average of surface integral of gy over the sphere curl bxr, and capital H of xr, that is defined as average of surface integral of hy over the sphere curl bxr. Okay, that was the notations we will used in the theorem. Now one more result we have talk about, that the derivative of the integral f dy over the ball bx naught r with respect to r, derivative if I am taking, that will be equal to integral f ds over the sphere curl bx naught r. Okay, for each positive r. Now we start about the Euler-Pearson-Darboux theorem. So what is the statement? For fix x belongs to Rn for n greater than equal to 2 and u belongs to Cm Rn cross 0 to infinity, that means u is m times differentiable over Rn cross 0 to infinity, m is greater than equal to 2, n is greater than equal to 2, that means u is 2 times differentiable or more time differentiable over Rn cross 0 to infinity, where n is greater than equal to 2. That will be the solution of the wave equation utt minus delta u equal to 0 in Rn cross 0 to infinity, and the initial conditions are u equal to g and ut equal to h over Rn cross t equal to 0. यहाँ पर जो ये g और h है, तो g तो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, दैट इज बिलोंग टू सी एम Rn क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, एंड h क्योंकि एक बार ये डेरिवेटिव हो ही चुका है, तो h की वैल्यू दैट इज m-1 टाइम डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू सी m-1 Rn क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, right? Are known functions, right? Then you have to show that this capital U, that is m time differentiable over r plus bar cross 0 to infinity, and utt capital U of tt minus capital U rr minus n-1 upon r capital ur will be equal to 0 in r plus cross 0 to infinity, and capital U equal to g and capital ut is equal to h on r plus cross t equal to 0, right? What does it mean? That means you have to show that t तो आपका 0 हो गया, that means u x r 0 will be equal to g x r, और इसका मीनिंग क्या है, ut equal to h का मीनिंग है ut x r 0 equal to h of x r. okay, now जो ये इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन, दिस, so this partial differential equation is the Euler-Pearson-Darboux equation. okay, तो जो Euler-Pearson-Darboux इक्वेशन है, इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो जो ये पार्ट आपका बचता है, दिस पार्ट, यहाँ पर ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद प्लस हो जाएगा, दिस पार्ट इज द रेडियल पार्ट ऑफ द लाप्लासियन. ओके, सो दैट मीन्स डेल्टा ऑफ कैपिटल यू का ये आपका क्या है, रेडियल पार्ट है इन द पोलर कोऑर्डिनेट, यू कैन से, राइट? नाउ लेट अस कम टू द प्रूफ फॉर द थ्योरम. हमने नोटेशन अभी यूज किया है कैपिटल यू ऑफ एक्स आर टी, दैट इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ यू वाई टी ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर, राइट? हमें क्या शो करना, अभी पहले हमें ये शो करना है कि कैपिटल यू बिलोंग्स टू सी एम आर प्लस बार क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी. ओके, इसके लिए हमें क्या शो करना है, इसका मीनिंग ये है कि यू इज एम टाइम डिफरेंशिएबल और आर प्लस क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी. व्हाट डज इट मीन?
दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यू आर यू आर आर यू आर 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 एंड मीन्स 4 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, 5 टाइम्स डेरिवेटिव एंड सो ऑन, राइट। बट फॉर दिस अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ दोनों तरफ, तो हमारे पास ये लिमिट में मेरे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे इंडिपेंडेंट ऑफ आर कर देते हैं। ओके, ओवर द बॉल इसके निकाल रहे हैं ना, तो इस बॉल को पहले इंडिपेंडेंट ऑफ आर कर देते हैं। सो वी यूज द सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि जो ये बॉल बी एक्स आर है, कर्ल बी एक्स आर स्फीयर, इसको मैं यूनिट स्फीयर में चेंज करता हूँ, कर्ल बी 01। यहाँ पर सेंटर आपका एक्स था और रेडियस आर थी। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर स्फीयर का सेंटर तो आपका ओरिजिन है 0 एंड रेडियस क्या है आपकी 1 है, राइट। तो यूनिट स्फीयर में हम चेंज कर रहे हैं। हाउ इट विल बी चेंज्ड, आई यूज़ द सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये वाई है, ये वाई किससे बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ बिलोंग टू द बाउंड्री। कि जो ये मेरी बॉल है, ये आपका सेंटर एक्स है और रेडियस आपकी आर है, तो ये बाउंड्री पर आपका वाई है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास है कि वाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू आर, राइट। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, वाई विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आर इंटू जेड। ओके, वेयर जेड इन सम रियल नंबर, सो आई से दैट y विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आर जेड। अगर मैं z की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, व्हाट विल बी द z विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन आर। ओके, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड z विल बी इक्वल टू व्हाट, मोड z विल बी मोड y माइनस एक्स अपॉन मोड आर। बट y माइनस एक्स क्या है, y तो आपका बाउंड्री से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए y माइनस एक्स इसके इक्वल है रेडियस के इक्वल। सो इसकी वैल्यू भी आएगी r एंड डिनोमिनेटर भी आपका r है, r बाई आर विल बी इक्वल टू 1। सो मोड जेड इक्वल टू 1, वट इज इट मीन, दैट मीन्स जो जेड है वो किससे बिलोंग कर रहा है, दैट जेड बिलोंग्स टू द स्फीयर कर्ल बी 01। ओके, तो जो मेरी प्रॉब्लम थी अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। आपकी जो इंटेग्रल ये गिवन था कैपिटल यू एक्स आर टी, ये था, ये इस तरीके से डिफाइन था आपका, एवरेज ऑफ यू वाई टी डी एस वाई ओवर द स्फीयर बी एक्स कर्ल बी एक्स आर। अब मैं इसे यूनिट स्फीयर में चेंज करके लिख रहा हूँ। देखो y की जगह आपका क्या आ जाएगा, x प्लस आर जेड, राइट। और ये जो आपकी बॉल है, आई मीन स्फीयर है, कर्ल बी एक्स आर, ये क्या बन जाएगा, स्फीयर यूनिट स्फीयर बन जाएगा कर्ल बी 01। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ एंड रीराइट करने के बाद आपका आएगा दिस वन, राइट। सो यू एक्स आर टी विल बी इक्वल टू यू ऑफ y की जगह आ गया x प्लस आर जेड टी डी एस जेड, where z belongs to this one unit sphere, right, curl b 01. Now I do the differentiation with respect to r both side. So it will be ur to the right hand side. What will be the derivative of this with respect to r? So derivative will be inside. So when you take the derivative of this u with respect to r, so that will be d of u, okay, into इसका derivative दोबारा लोगे तो that will be r will be there, I mean z will be there, so into z and that will be dsz, right. But what is the z की वैल्यू अभी मैंने y को क्या किया है, यूज x प्लस आर जेड। सो z की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन आर। सो ये हमने z की वैल्यू पुट किया है यहाँ से, राइट। सो इट विल बी d ऑफ u, ये हमारा यूनिट स्फीयर था। अब यूनिट स्फीयर से हम दोबारा स्फीयर पे आ रहे हैं जिसकी सेंटर आपका x है और रेडियस r है, तो दोबारा उस पर आएगा, तो इसकी जगह तो मैं y यूज कर दूँगा। तो जैसे मैं इसकी जगह y यूज करूँगा तो मेरा जो यूनिट स्फीयर है, यूनिट स्फीयर से स्फीयर बन जाएगा कर्ल बी एक्स आर। तो मेरा ये इंटेग्रल बन चुका है d ऑफ u वाई टी इंटू ये क्या हो गया, z की वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन आर डी एस वाई ओवर कर्ल बी एक्स आर। ओके, नाउ आई एम कॉलिंग दिस y माइनस एक्स अपॉन आर एज न्यू, इसको मैं न्यू कंसिडर कर रहा हूँ। सो इफ दिस इज न्यू, सो न्यू को अगर मोड वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, दैट विल बी मोड y माइनस एक्स अपॉन मोड आर, ये r अपॉन आर, दैट विल बी 1। ओके, तो आपका न्यू क्या बन गया, न्यू इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो इफ़ दिस इज कंसिडर एज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो ये आपका क्या बन चुका है, लेट अस सपोज इसे मैं न्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो आपका जो इंटीग्रल है ये आपका ये बन चुका है, कैपिटल यू आर एक्स आर टी क्या बन गया आपका, एवरेज ऑफ डी यू इंटू न्यू डी एस वाई। न्यू लिखिए या न्यू कैप लिख दीजिए, इट इज अप टू यू, ओके। बट वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि वो क्या है, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर, राइट। बट हम एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। व्हाट वाज दैट, डी यू, ये राइट साइड में मेंशन है, डी यू डॉट न्यू विल बी इक्वल टू कर्ल यू ओवर कर्ल न्यू।
इट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी यू डॉट न्यू, दैट विल बी रिटन एज कर्ल यू ओवर कर्ल न्यू. ओके, सो इट विल बी कर्ल यू ओवर कर्ल न्यू. नाउ इट इज़ द एवरेज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल यू ओवर कर्ल न्यू ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर. सो दिस एवरेज, अगर मैं इसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ, सो दिस कन्वर्जन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये नोटेशन भी हम स्टडी कर चुके हैं. अगर मैं इसे सिंपल इंटीग्रल में चेंज करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 1/n इंटू अल्फा एन रेडियस की पावर n-1, रेडियस क्या है r पावर n-1 इंटू ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल कर्ल यू ओवर कर्ल न्यू इंटू डी एस वाई ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर. राइट, now I will use the result we have used many times. What is the result? That is the green formula, and the green formula says that if u and v are the two functions, then integral of u into delta v minus v into delta u over the region u will be equal to surface integral of u into, इसे लिख देगी कर्ल v ओवर कर्ल न्यू माइनस v ऐसे कैसे इंटू कर्ल u ओवर कर्ल न्यू इंटू डी एस सरफेस इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ यू. राइट, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो हमारा केस है उसमें मैं v को 1 यूज कर रहा हूँ. सो इफ़ यू v को 1 यूज करते हैं, अगर मैं v को 1 यूज करता हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ v आपका 1 है तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू 0. सो डेल्टा v 0 हो जाएगा. सो ये आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो होगी 0, और ये बन गया माइनस डेल्टा यू. ओके, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी आप देखोगे कर्ल v ओवर कर्ल न्यू, ये तो बन गया 0, और ये आपका बन गया माइनस कर्ल u ओवर कर्ल न्यू डी एस. ओके, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आप कहोगे डेल्टा u ओवर न्यू इंटीग्रल विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल u ओवर कर्ल न्यू ओवर बाउंड्री ऑफ u. दीज आर द सेम. ओके, सो दैट मीन्स दीज आर द सेम. अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहा हूँ डेल्टा u का ओवर u, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल u ओवर कर्ल न्यू ओवर द बाउंड्री ऑफ u. सो यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट इज कर्ल u ओवर कर्ल न्यू ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल. सो यू विल से दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ u ओवर द बॉल डी एक्स आर. सो ये वाला रिजल्ट यूज करके हमारे पास ये आ जाएगा. तो यू आर विल बी इक्वल टू 1/n अल्फा एन आर रेस्ट पावर n-1 एज इट इज, और इसकी जगह हमने किया डेल्टा ऑफ u dy over the ball dxr. Right, now you will rewrite this one. This is as it is. इंटीग्रल को अगर मैं एवरेज में चेंज करता हूँ तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल एक तरह से अगर मैं एवरेज में चेंज करता हूँ दैट विल बी इक्वल टू 1. ये आपका बॉल के ऊपर है. सो अगर बॉल के ऊपर है तो यू नो दैट हमारे पास एक रिजल्ट था दैट एवरेज ऑफ एफ डी एक्स ओवर वॉट over ball bxr, right, that will be equal to what, 1/alpha n into r raised to power n, और ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता था f dx. ओके, और द बॉल bxr. तो अगर मुझे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है एवरेज के टर्म में, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आ जाएगा. राइट, तो कर्ल f ऑफ dx, सो इंटीग्रल ऑफ f over the ball bxr, that will be equal to alpha n into r raised to power n average of f over the ball bxr. तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया. तो ये इंटीग्रल था ऑफ डेल्टा u ओवर द बॉल bxr, that will be equal to the average of delta u over bxr into alpha n into r raised to power n. राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या होगा, दिस टर्म विल बी कैंसल आउट एंड r अपॉन n into this one. राइट, सो वी आर लेफ्ट विद दिस वन. ये रिजल्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको जो हमने यूज किया. यस, दिस रिजल्ट वी हैव स्टडी. ये हमने एवरेज ऑफ एफ और द बॉल इस तरीके से होता था, और एवरेज ऑफ एफ अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ है ओवर द बाउंड्री ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस वन. ओके, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, यू आर विल बी इक्वल टू दिस वन. अगर आर इज अप्रोचेस टू 0, अगर यहाँ पर मैं आर को अप्रोच करता हूँ, आर इज अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, सो राइट हैंड साइड आल्सो आर इज अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. सो आप कहोगे जो ये राइट हैंड साइड है दैट विल बी अप्रोचेस टू 0. ओके, सो यू से दैट यू आर विल बी इक्वल टू 0. राइट,
So we are saying ur will be equal to 0 when r approaches to 0 positive. Okay, now I differentiate that equation with respect to r again. So which is the equation number 2. इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कॉल किया है, तो इसी को मैं दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर. ओके, सो आप देख सकते हो ये भी आपका आर का फंक्शन है और ये इंटीग्रल भी आर का फंक्शन है. सो देयर विल बी द प्रोडक्ट रूल. सो विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1/n, फिर प्लस r/n एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिखेगा. राइट, सो यहाँ पर मैंने लिखा है यू आर आर कर दिया, लेफ्ट साइड में यू आर था तो यू आर आर हो गया. इंटीग्रल एज इट इज r/n का डेरिवेटिव हो गया 1/n प्लस r/n एज इट इज और इसका इंटीग्रल का डेरिवेटिव ये रहा आपके पास. राइट, नाउ वी राइट द फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस r/n. इस एवरेज को मैं दोबारा इंटीग्रल में चेंज करता हूँ, तो एवरेज ऑफ डेल्टा यू ओवर द बी एक्स आर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा यू ओवर बी एक्स आर इंटू 1/α एन r/n. राइट, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो फिर दोबारा से ये भी टर्म आपकी आर की है, ये भी टर्म आपकी है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. ओके, सो आई अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एंड साइमल्टेनियसली आई विल टेक द प्रोडक्ट विद r/n. सो हमारे पास पहली टर्म क्या आएगी, ये इंटीग्रल ऐसे कैसे और इसका डेरिवेटिव कर दो r⁻n/n आएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -n/r⁻n+1 और डिवाइड में अल्फा एन ऐसे कैसे. ओके, ये इंटीग्रल ऐसे कैसे लिया था हमने, इनटू में r/n था वो ऐसे कैसे लिखा, प्लस व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, ये टर्म ऐसी कैसे आनी चाहिए, अब ये टर्म हमने ऐसे कैसे लिखी, इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर और इनटू में r/n. राइट, तो हमारे सोल्व करके आ गया. हमने यहाँ पे क्या किया, n कैन बी कैंसल आउट, सो विल टेक दैट, और ये r भी कैंसिल हो गया, यहाँ r/n बचेगा. राइट, सो इसी को मैं रीराइट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर. दैट विल बी, लिसन, दिस फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. ये टर्म क्या हो गया -1/α r/n इंटू डेल्टा यू ओवर बी एक्स आर. ओके, ये 1/n r/n-1 आ गया, और यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस वन, d/dr ऑफ द इंटीग्रल डेल्टा यू ओवर द बोल बी एक्स आर, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. ये अभी रिजल्ट हमने यूज किया था, जो ऊपर हमने नोटेशंस यूज किए तो वहाँ पर हमने एक रिजल्ट यूज किया था, द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन डेल्टा ऑफ यू ओवर द बोल, okay, that will be equal to the surface integral of that function delta u over the boundary of that ball. Right, तो हमने वो रिजल्ट यूज किया. लेट मी शो यू द रिजल्ट अगेन. तो ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द रिजल्ट. डेरिवेटिव ऑफ एफ डी आर ओवर द बॉल विल बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल बी एक्स नॉट आर. राइट, तो यहाँ पर ये हमने रिजल्ट अप्लाई किया, दिस इज द रिजल्ट. इसकी जगह हमने क्या लिखा है, दिस वन. राइट, यही आपका रिजल्ट था. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज. नाउ यू विल ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज दिस वन, ये अभी हमने नोटेशन यूज किया है, दैट इज द एवरेज ऑफ डेल्टा यू ओवर द बॉल बी एक्स आर. तो हमारी फर्स्ट टर्म तो ऐसे कैसे लिखी है, माइनस दिस इज द एवरेज ऑफ डेल्टा यू ओवर द बी एक्स आर, और ये क्या है, दिस इज द एवरेज ऑफ डेल्टा यू over the boundary of BXR. So this is the average of delta U over the boundary of BXR. Right, so I will take this one now. So in this way we get URR will be equal to what, that will be 1/n average of delta U over the ball minus average of delta U over the ball plus average of delta U over the boundary of the ball, that means over the sphere. Right, now this thing can be written as, ये टर्म आपकी कॉमन है, that is average of delta U over the ball, average of delta U over the ball. So that means if I take this one is common, so coefficient will be 1/n-1. Right, and plus ये टर्म ऐसे कैसे लिखे हमने. राइट, नाउ URR आपके पास आ चुका है. अब आप ले रहे हैं लिमिट r टेंड्स टू 0 plus. So when r is tending to 0 positive over this side and over this side, so what it will be, you know that ये हमने रिजल्ट पहले भी यूज किया है,
इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ डेल्टा यू का एंड ओवर द बॉल बी एक्स आर, अगर आर आपका अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये एवरेज किसको अप्रोच करेगी? आपको पता है कि अगर मेरे पास ये बॉल है आपका, इसका सेंटर मेरा एक्स है और रेडियस आर है, तो फिर ये कुछ समय बाद ये बॉल फिर दोबारा जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो ये रेडियस और छोटा हो गया, सेंटर यही है, फिर ये रेडियस और छोटा हो गया, सेंटर वही एक्स है आपका, देन इट इज़ रेडियस इज अगेन दिस एक्स। ओके, ये मैंने कैपिटल यूज किया, ये मैं आपको जो बॉल है वो आपको बड़ी साइज़ की दिखाई दे रही है, बट वी आर कंसिडरिंग इज वेरी वेरी स्मॉल बॉल। ओके, हुज रेडियस इज वेरी स्मॉल विच इज अप्रोचेस टू जीरो एक्चुअली। ओके, सो आपको दिख जाए तो इसलिए हम इसे बॉल को इस साइज़ का ले रहे हैं। तो बॉल हम धीरे धीरे करके, दैट मीन्स रेडियस आपका स्मॉल होता जा रहा है, फिर लास्ट में करते करते ये रेडियस इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके की बॉल है जो लगभग आपके सेंटर को ये अप्रोच करेगी। तो अगर इस सेंटर को अप्रोच करिए, व्हाट इज द सेंटर हियर? सेंटर इज एक्स हियर, राइट। जब आर आपको जीरो को अप्रोच करेगा तो जो ये बॉल है दैट बॉल विल बी अप्रोचेस टू सेंटर एक्स, दैट मीन्स जो भी मैं वाई ले रहा हूँ, जो भी वाई ले रहा हूँ इस बॉल के अंदर, दैट इज अप्रोचेस टू एस। सो वाई इज नथिंग बट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड सेंटर बिकम्स इक्वल। सो आप कहोगे एवरेज ऑफ डेल्टा यू ओवर द बॉल बी एक्स आर वेयर आर इज अप्रोचेस टू जीरो, that value will be approaches to delta u xt. Similarly, if you find out average of delta u ds over the sphere, अब स्फीयर भी हमारा क्या है? स्फीयर में केवल बाउंड्री है, इंटरनल पार्ट नहीं है हमारा। ओके, तो बाउंड्री है, तो अगर ये बाउंड्री है, यहाँ पर सेंटर एक्स है और केवल मेरे पास बाउंड्री है, अगर ये बाउंड्री स्मॉल होती जाती है आपकी, तो आपका ये स्फीयर बन जाएगा, फिर आपका ये स्फीयर बन जाएगा। इस तरीके से स्फीयर वेरी वेरी स्मॉल है, तो इन सभी के एवरेज अगर वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर रेडियस में वेरी स्मॉल लेकर चल रहा हूँ। सो दैट मीन्स दैट इज़ नथिंग बट द एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू एट द वैल्यू एट द सेंटर, दैट मीन्स एट एक्स। ओके, सो आप कहोगे जो एवरेज वैल्यू ऑफ डेल्टा यू आएगी आपकी, तो वाई आपका लगभग क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया जब आर अप्रोचेस टू जीरो हुआ। सो आपकी डेल्टा यू वाई टी की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी अप्रोच टू डेल्टा यू एक्स टी। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है आपकी? जब मैं आर अप्रोचेस टू जीरो ले रहा हूँ इस बॉल में, तो दिस वैल्यू इज अप्रोचेस टू डेल्टा यू एक्स टी, दिस वैल्यू इज आल्सो अप्रोचेस टू डेल्टा यू एक्स टी। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिखी, ये तो ऐसी कैसी है? डेल्टा यू एक्स टी, और ये भी आपका डेल्टा यू एक्स टी। इससे जब आप सोल्व करोगे यू विल से दैट 1/n डेल्टा यू एक्स टी, बाकी आपके दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो यू आर आर आपके पास ये आ गया। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जब आर अप्रोचेस टू जीरो है तो यू आर आर आपके ये आया, लेकिन आपका यू किससे बिलोंग कर रहा है? इसी तरीके से अगर मैं यू आर आर मेरा निकल गया, इसी तरीके से ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 टाइम डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो और आर अप्रोचेस टू जीरो ले सकते हो। ओके, बट हमारा जो यू है वो गिवन है, दैट इज एम टाइम डिफरेंशिएबल ओवर आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। तो अगर ये यू एम टाइम डिफरेंशिएबल है, तो जो आपका यू आ रहा है दैट मीन्स कैपिटल यू है, सो कैपिटल यू इज आल्सो विद द एम टाइम डिफरेंशिएबल ओवर आर प्लस क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, जहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? आर इज अप्रोचेस टू द जीरो प्लस, मतलब पॉजिटिव आर ले रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर आर प्लस क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। So that will be the given part which we have to prove, that u belongs to Cm r plus cross 0 to infinity, right. Now you have to show that the Euler-Poisson-Darboux theorem utt minus urr, ओके, जो भी आपकी डार्बक्स थ्योरम थी उसको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं यू आर ले लेता हूँ, जो आपकी सेकंड रिजल्ट आया था। यू आर की वैल्यू क्या है? लेट मी राइट, लेट मी शो यू, दिस इज यू आर की वैल्यू आई थी आपकी r/n एवरेज ऑफ डेल्टा यू ओवर द बॉल। ओके, नाउ इस एवरेज को अगर मैं सिंपल इंटीग्रल में चेंज करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/α इंटू आर एस टू आर एन होगा, एंड डेल्टा ऑफ यू दैट विल बी द सिंपल इंटीग्रल डेल्टा ऑफ यू ओवर द बॉल, राइट। इसी को अगर सिंपलीफाई करो, ये क्या हो जाएगा? 1/n आर एस टू आर एन माइनस 1 डेल्टा यू ओवर द बॉल डी एक्स आर। तो यू आर की वैल्यू आ गई। जो आपकी टर्म है आर एस टू आर एन माइनस 1, इसको मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। सो आर एस टू आर एन माइनस 1 इंटू यू आर विल बी इक्वल टू 1/n डेल्टा ऑफ यू वाई टी डी वाई ओवर द बॉल डी एक्स आर। वट आई डू हियर?
हमें यू आर आर चाहिए, सो आई विल टेक वन मोर टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड। सो यहाँ पर आपका क्या आर का फंक्शन है प्रोडक्ट में, सो देयर विल द प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू आर अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एच टी इज डेरिवेटिव यू आर इज यू आर आर प्लस यू आर इज एच टी इज डेरिवेटिव ऑफ आर एस टू आर एन माइनस वन इज एन माइनस वन इंटू आर एस टू आर एन माइनस टू, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, वन अपॉन एन एल फैन, इसे लिख दे डी बाई डी आर ऑफ दिस वन। ओके, और अभी हमने रिजल्ट स्टडी किया है, उसी को दोबारा यूज कर रहे हैं रिजल्ट को, कि अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एफ डी आर ओवर द बी एक्स आर निकाल रहा हूँ, बी एक्स नोट आर, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहा हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ डी एस ओवर द बाउंड्री ऑफ दैट बॉल। तो मेरे पास यही तो है, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेल्टा यू है आपका, इसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रल है बी ओवर द बी एक्स आर, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ डेल्टा यू ओवर द बाउंड्री ऑफ बी एक्स आर। ओके, so that will be equal to this one. Now what I will do, I will get the result left hand side, suggest is 1 upon n alpha n, and what is delta u? You know that utt, this is given, utt minus delta u will be equal to 0 on Rn cross 0 to infinity, right? अगर ये Rn cross 0 to infinity पे है, तो ये जो sphere है that is the subset of Rn actually, so that result will be hold on that every subset of this Rn cross 0 to infinity, right? So that means this delta of u, अगर मैं delta of u की वैल्यू निकालता हूँ तो utt will be equal to delta of u, तो delta u की जगह मैं लिख सकता हूँ utt, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा आपका, इसकी जगह देखो राइट हैंड साइड में लिख दिया utt और yt dsy over the ball boundary of the ball bxr, right? now look at this, इसको अगर इंटेग्रल को मैं एवरेज में दोबारा कन्वर्ट करूँ, तो दैट इंटेग्रल विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ यू टी टी ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल इंटू एन एल्फा एन इंटू आर एस टू आर एन माइनस वन, ये हो रहेगा आपका। ओके, तो ये मेरा इंटीग्रल एवरेज में कन्वर्ट हुआ, राइट? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एल्फा एन कैंसिल हो गया आपका, एंड व्हाट इज लेफ्ट आर एस टू आर एन माइनस वन एवरेज ऑफ यू टी टी ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल बी एक्स आर। सो व्हाट आई विल डू हियर नाउ, I divide the whole equation, जो आपकी पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को r इस टू आर एन माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं। सो व्हेन आई डिवाइड द इक्वेशन बाय r इस टू आर एन माइनस वन, सो व्हाट इज हियर, व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी यू आर आर, यहाँ से डिवाइड करेंगे r इस टू आर एन माइनस वन से, तो क्या बचेगा n माइनस वन अपॉन r इंटू यू आर, राइट हैंड साइड में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एवरेज ऑफ यू टी टी ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल बी एक्स आर, राइट? सो विल गेट दिस रिजल्ट। नाउ आई रिकॉल द नोटेशंस, जो नोटेशंस हमने यूज की थी वो हम यूज करते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि हमने कैपिटल यू में वैल्यू डिनोट करनी है, ये वाली भी राइट हैंड साइड में जो है। तो हमें पता है कि कैपिटल यू एक्स आर टी हमने क्या डिफाइन किया था, दैट इज एवरेज ऑफ यू वाई टी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ यू वाई टी ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर, तो आपका यही है, लेकिन हमें यू टी टी चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये रिजल्ट था, नोटेशन थी, इसमें दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेता विद रिस्पेक्ट टू टी टू टाइम्स, सो दैट विल बी यू टी टी। तो आपकी लिमिट जो है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, सो ये डायरेक्ट आपका अंदर हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट विल बी यू टी टी ऑफ वाई टी डी एस वाई, राइट? सो यू विल से दैट इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है यू आर आर, यू टी टी, कैपिटल यू टी टी एक्स आर टी, तो ये वैल्यू मुझे यहीं तो रखनी है। ओके, तो आप ये वैल्यू यू टी टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा यू टी टी एक्स आर टी, तो मैंने इससे लिख दिया यू टी टी। एक्स आर टी नहीं लिख रहे, जहाँ पे भी कैपिटल यू है दैट मीन्स दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स आर टी, राइट? तो इसे लिखे यू आर आर प्लस एन माइनस वन अपॉन आर यू आर विल बी इक्वल टू कैपिटल यू टी टी, राइट? सो दिस वन, जो हमारे लेफ्ट साइड में टर्म्स है उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ टू द राइट हैंड साइड, तो हमारी टर्म्स क्या आ जाएगी, यू टी टी माइनस यू आर आर माइनस एन माइनस वन अपॉन आर इंटू यू आर विल बी इक्वल टू जीरो। तो यही मेरे पास इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। ओके, दैट इज ओवर आर प्लस क्रॉस 0 to infinity, राइट? अब हमें बाउंड्री कंडीशन जो और है आइलर पासन डार्बक्स इक्वेशन की, वो हमें और कंडीशन शो करनी है कि कैपिटल यू की वैल्यू किसके इक्वल थी, जी के इक्वल थी, एंड कैपिटल यू टी की वैल्यू आपकी एच के इक्वल थी, कैपिटल एच के इक्वल।
तो हम नोटेशन को रिकॉल करते हैं। कैपिटल यू एक्स आर जीरो, तो कैपिटल यू एक्स आर टी था, उसमें मैं टी को जीरो यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, एवरेज ऑफ यू वाई टी था, यू वाई जीरो डी एस वाई ओवर द स्फीयर वी एक्स आर। लेकिन ये क्या है यू वाई जीरो, ये हमें गिवन है कि यू वाई की वैल्यू क्या थी आपकी, दैट मीन्स यू वॉज इक्वल टू जी क्वेश्चन में, जहाँ पर टी इक्वल टू जीरो था। इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है, तो कहने का मीनिंग है यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, और यू कैन से दैट यू ऑफ वाई जीरो विल बी इक्वल टू जी वाई। तो इसलिए यू वाई जीरो की वैल्यू क्या होगी, जी वाई डी एस वाई। लेकिन ये हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एवरेज ऑफ जी वाई, व्हाट इज दिस नोटेशन, एवरेज ऑफ जी वाई डी एस वाई ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर। इसको हमने क्या डिनोट किया है, ये नोटेशन मैंने यूज किया, इसे यूज डिनोट किया हमने कैपिटल जी एक्स आर। ओके, तो ये हो गया कैपिटल जी एक्स आर। तो हमारे पास यू एक्स आर जीरो क्या आ गया, कैपिटल जी एक्स आर, दैट मीन्स कैपिटल यू इज इक्वल टू जी। ओके, अब अगर मैं यू टी निकालता हूँ, यू टी ऑफ एक्स आर जीरो, यू टी ऑफ एक्स आर जीरो वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू एच ऑफ एक्स आर होना चाहिए, और यू कैन से दैट यू टी इज इक्वल टू एच होना चाहिए। ओके, सो अब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो जो मेरा नोटेशन है यू, जो हमारी नोटेशन थी कैपिटल यू, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट हम वहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कैपिटल यू था आपका एवरेज ऑफ यू वाई टी डी एस वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स डेरिवेटिव लेने से यू टी विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ यू टी डी एस वाई ओवर द स्फीयर कर्ल बी एक्स आर, राइट। अब यहाँ टी को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। लेकिन ये वैल्यू आपको गिवन है, स्मॉल यू टी वाई जीरो, ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, स्मॉल एच के इक्वल, सो दैट इज इक्वल टू स्मॉल एच वाई। सो स्मॉल एच वाई डी एस वाई कर्ल बी एक्स आर, सो ये जो एवरेज है आपकी, एवरेज ऑफ एच वाई डी एस वाई ओवर द स्फीयर बी एक्स आर, ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एच एक्स आर। ये नोटेशन गिवन है कैपिटल एच एक्स आर की। ओके, जो हमने ओपन नोटेशन आपको दिखाई है। सो यू विल से दैट कि जो कैपिटल यू टी है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एच, राइट। सो अगर मैं कलेक्टिवली कहता हूँ इन इक्वेशंस को, यू विल से यू टी टी, कैपिटल यू टी टी माइनस कैपिटल यू आर आर माइनस एन माइनस वन अपॉन आर, कैपिटल यू आर विल बी इक्वल टू जीरो in r plus cross 0 to infinity, and capital U is equal to G and capital UT is equal to H on r plus cross t equal to 0. Okay, this is your Euler-Poisson-Darboux theorem, right? So the next theorem we will discuss in the next class. Thank you very much, students.